تو ناظرین ابھی ہم موجود ہیں مقبرہ جو حاتم طائی کا ہے اس کے پاس، اور یہ انہوں نے ادھر سائن بورڈ لگایا ہوا ہے، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے توارن منازل حاتم طائی، اور یہ ایرو کا نشان دیا ہوا ہے۔ اس طرف کو ذرا اخلاق بھائی آپ ادھر کو کیمرہ میں، یہ اس کے جو آبائی گاؤں تھا حاتم طائی کا، تو اس کے پاس ابھی چلتے ہیں، تو ادھر جا کے آپ کو اس کا مقبرہ جو بھی ہے اس جگہ پہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقی معاملات انشاءاللہ آگے پہنچ کر آپ اچھا کرو ہم بول یہ ادھر کا باغ کا نا، ادھر کا آپ کا نا اخلاق بھائی جی بسم اللہ جی تھوڑا چلو جی یہ دیکھیں بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں ہوں محمد کیسر مدینہ منورہ سے، اور سب سے پہلے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی۔ تو ناظرین اللہ پاک کے حمد و ثنا اور ذکر کے بعد آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز۔ آج ہم موجود ہیں تاریخی جگہ اور ہسٹوریکل جگہ، اس جگہ کا تاریخ میں بہت مقام ہے جناب حائل سٹی میں، اور یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حاتم طائی کا جو آبائی علاقہ تھا اس جگہ پہ موجود ہیں ہم۔ تو باقی انشاءاللہ آگے چل کے یہ وہ گریا ہے، ولیج ہے، اس جگہ کے پہنچ کے آپ کو اس کے تمام چیزوں کی جو اس وقت کے اثرات ہیں اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو چلے فی امان اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب یہ ہمارے ساتھ حاجی اخلاق صاحب ماشاءاللہ حائل میں رہتے ہیں، اور یہ ہمارے پیچھے بہت ہی پیارے بھائی ماشاءاللہ تبارک اللہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب ماشاءاللہ جی، یہ بھی حائل میں رہتے ہیں اور گاڑی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ حاجی ذوالفقار صاحب۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت انداز ہے ان کا، مسکرا رہے ہیں، ہلکا ہلکا ٹچ دے رہے ہیں۔ تو جناب آئے ہوئے ہیں ہم، کدھر آئے ہیں مجدد بھائی؟ حائل بھائی، حائل میں آئے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ آتے ہیں حائل کے روڈز کا، یہ جبہ روڈ ہے بھائی، جبہ روڈ ہے یہ ماشاءاللہ جبہ روڈ ہے۔ یہ کس طرف کو جاتا ہے؟ حاتم طائی کی طرف جاتا ہے، حاتم طائی کی طرف جاتا ہے۔ حاتم طائی جناب یہ سب ہم بھائی جانتے ہیں، کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ حاتم طائی جو اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، یہ غیر مسلم تھے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ عرب کے بہت ہی اس وقت کے جناب سخی کے طور پہ انہوں نے اپنے علاقے میں جو اپنا نام اور شہرت، وجہ شہرت جو تھی ان کی، یہ سخاوت کی وجہ سے مشہور تھی۔ تو باقی انشاءاللہ آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور ادھر پہنچ کے باقی مارکیٹ منظر ہے۔ اچھا جی۔ ادھر جناب مجددی بھائی نے یہ شمامہ لے آئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری طرف اخلاق بھائی سلنٹی کھانے میں مصروف۔ ادھر دیکھیں جناب ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ جناب سلنٹی نکالیں ذرا، تھوڑی سی جان نکالیں، بسم اللہ بسم اللہ، ہاں دبائیں ذرا، کھائیں ذرا، بسم اللہ، کڑچ کڑچ، صحیح آواز آ رہی ہے۔
और हाजी जुल्फ़िकार साहब आप भी थोड़ा चेहरा शरीफ घुमाएं थोड़ा सा। पीछे हटे ये जनाब ये सरकार खाएं। जी जनाब मुजद्दिद भाई करें बात माशाल्लाह जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, ये शमाम है, इसको अरबी में शमाम कहते हैं। शमाम कहते हैं अरबी में। ठीक हो गया सर। अच्छा जी। ये हाइल से तकरीबन 30-40 किलोमीटर एक छोटा सा विलेज है, यहाँ का है। अच्छा और जी। बहुत ही मीठा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मीठा माशाल्लाह। जी ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा आप जी। लोगों की मोहब्बत है, इसलिए आप इतनी दूर से आए हैं। अच्छा अच्छा और आपकी मोहब्बत हमें खींच के लाई है जहाँ। माशाल्लाह। और आपके लिए स्पेशल ये तोहफा हम इंशाल्लाह आपको पेश करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन ये देखिए माशाल्लाह आपके सामने तवाज़न जो मुनाज़िल हातिम ताई है उसकी तरफ ये रोड जा रहा है सामने। तो चलो चलते हैं इंशाल्लाह आगे जाके इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। नाज़रीन बाकी बातें जो इंशाल्लाह हातिम ताई और उसकी औलाद या उसके वाक़या जो भी है वो उस जगह पे पहुंच के जाके आपके साथ शेयर करते हैं और इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि वो जिस इलाके में मौजूद थे और जहाँ उनका सी और इस दस्तरखान लगता था, लोग खाना वगैरह या उनकी सखावत के जो चर्चे थे वो कौन सी जगह है, किस जगह पे मौजूद है, उस इलाके के मुतालिक जो भी मालूमात है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी चेक करो जी, जो सवर चेक कराओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन ये देखें अभी हम हातिम ताई के मकबरे की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये खूबसूरत व्यू है पहाड़ों का, एक वसी और रीस और ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इनकी खूबसूरती से आप खुद देख सकते हैं कि उस वक़्त ये क्या मंजर पेश करते होंगे जब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। और अभी तो माशाल्लाह हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं इंशाल्लाह अजीबोगरीब किस्म के पहाड़ और बेहतरीन और ख़ूबसूरत व्यू। ये आप आगे की तरफ आप देख सकते हैं, ये इस तरफ आप देखें और माशाल्लाह आगे भी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और भी खूबसूरत व्यू आने वाले हैं। ये देखें आप माशाल्लाह, ये पहाड़ जो है ना ये अल्लाह ताला की तख्लीक जो है उसको बिल्कुल वाज़े करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो निशानियाँ दी हुई हैं ये भी उनमें से एक निशानी है। और ये आप देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गोदियां नहीं बना के बहुत गोदियां तो बनाई नहीं यार, उन्हें लभे नहीं हो रहे। आ गया ना क्या मैं इशारा कर रहा नहीं करने बाद में दस्ती फिर मुंह पे हाँ जी पहुंच गए जी, दिन मारो जी। तो नाज़रीन फाइनली हम हातिम ताई के मकबरे के पास पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने उधर खड़ी कर ली है। तो अभी हम आपको मकबरे के पास लेके जाते हैं। ये देखें बिल्कुल आपके सामने, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वो सामने उसका बोर्ड लगा हुआ है मकबरे के लिए। तो चलो चलते हैं उसके पास। तो माशाल्लाह जनाब आज हमारे साथ इधर आए हैं हातिम ताई के मकबरे के पास, ये जाहिद भाई हैं, ये जनाब हमारे अली भाई। अली भाई कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का माशाल्लाह। और ये हमारे जनाब हारदिल अजीज़ भाई हैं, गुलाम मुस्तफ़ा मुजद्दिदी। वेलकम सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जनाब सामने हाजी जुल्फ़िकार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह किधर आए जनाब आज? जी आज हातिम ताई इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा से देखने के लिए तो आए लाए हुए हैं। अच्छा, और ये हमारे भाई जनाब अखलाक साहब, ठीक है ना, ये हमारी मेज़बान भी हैं और माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। और इसके पास हम लोग आए हैं। बहुत शुक्रिया। और ये भी माशाल्लाह हमारे राना साहब हैं,
राना साहब आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। राना उमर साहब इसका नाम है और ये भी माशाल्लाह हमारे मेज़बान हैं। मोस्ट वेलकम भाई जी। और ये जनाब हमारे तलहा भाई हैं माशाल्लाह जी। तलहा भाई और सुनाएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजरीन अभी हम मौजूद हैं मकबरा जो हातिम ताई का है उसके पास, और ये उन्होंने इधर साइन बोर्ड लगाया हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है तवारन मनाजिल हातिम ताई, और ये एरो का निशान दिया हुआ है। उस तरफ को ज़रा अखलाक भाई आप इधर को कैमरा में, ये उसके जो आबाई गांव था हातिम ताई का, तो उसके पास अभी चलते हैं। तो उधर जाके आपको उसका मकबरा जो भी है उस जगह पे आपको इंशाल्लाह आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और बाकी मामला इंशाल्लाह आगे पहुँच कर आप ना दे यार ये की है ये गल है ना। चलो जी। लिया फाड़ को ना दे यार आला भाई आप अपना बिस्मिल्लाह जी। तलहा भाई क्या करना शुरू कर रहे हैं आप? हम ये खा रहे हैं तरबूजा। गुज़ा हाय 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 माशाल्लाह जी। अखलाक भाई ना स्वाद आ गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें जी। अखलाक भाई स्वाद आ जरा हमारे चाक इसको चक मारे छुरी नहीं यार, वो नहीं यार यार आ लो ना। राना बाप नहीं। बिस्मिल्लाह जी। आओ जी जदी साहब जी। स्पीड मार स्पीड माशाल्लाह जी। शुरू करो चलो। सांगी आंदे ने तरबूजा भी आखदे ने। राना एक दिन डक्की भी आखदे ने। डक्की एक दिन की आखदे ने। स्पीड मार असल कल ला ले ना रंग नहीं मजा नहीं तेरी ककड़ी नहीं आंदी। गरमा गरमा ਉਹ ਗਰਮਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਰਮੇ ਦਾ अरे ऐसा ही ਹੁੰਦਾ भी ਨਹੀਂ ये ਗਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। खा नहीं लिया तू नहीं बंद कर यार तुसी खा लिया ए, अखलाक भाई जी बिस्मिल्लाह जी। थोड़ा चलो जी। ये देखिए want to go yeah लो स्पीड मार। राणा साहब आ गए जनाब। राणा साहब खरबूजा लेके भाग गए हैं और हमारा दाल लग गया जनाब। इधर जनाब मुकाबला लगा शुरू होने। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चार साथ में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे जी क्या जाकर नाज़रीन अभी हम हातिम ताई के आबाई गांव में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरफ वो आबादी थी जहां हातिम ताई रहता था, और ये ही वो इलाका था। ये देखें आप पहाड़ों के बीच में ये एक छोटी सी बस्ती है, और इस तरफ भी अगर आप देखें तो वसी और इस पहाड़ों का एक सिलसिला है। उस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, और वो सामने जो मकबरा आपको चार वाली नज़र आ रही है उस जगह पे हातिम ताई की कब्र है। और ये वो गरिया था, विलेज था, जो भी था, इस जगह पे हातिम ताई की सखावत जो वो करते थे यही उसका आबाई इलाका था। ये आप खुद भी उसकी ज़ियारत करें। और वो हातिम ताई के बारे में आपको ये क्लियर होना चाहिए था कि वो मुसलमान नहीं था। हाँ, उसकी औलाद में से जो उसकी बेटी थी और जो उसका बेटा था अदी बिन हातिम, उसने इस्लाम कबूल किया था। तो नाजरीन फाइनली हम इन पहाड़ों के ऊपर आ गए हैं, और अभी आपको दिखा सकते हैं ये सामने जितना भी एरिया है ये आप जो देख सकते हैं ये वाला सारा ये हातिम ताई का आबाई गांव था जहां वो रहता था। अभी हम पहाड़ के ऊपर आ गए हैं, ये आपको ऊपर से इस इलाके का व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखें मुजद्दिदी साहब जनाब बहुत मेहनत के बाद जो ना किला फतह करने के बाद वापस आ, और ये देखें आप जनाब मुजद्दिदी भाई को काफ़ी जो ना सांस में मसाइल का सामना करना पड़ा, सांस इनकी उखड़ रही है भाई बार बार। जनाब कुछ दोस्त हमारे जनाब पहाड़ के ऊपर चला गए थे। राणा साहब ज़रा हाथ खड़ा करना ज़रा। मुजद्दिद साहब क्या सूरत हाल है? हैं
नहीं यार, क्या हुआ क्या आपको? हाँ माशाल्लाह जी, बहुत वो मसाइल पेश आ रहे हैं वापसी पे। ये नाज़रीन देखें, बिल्कुल खंडरात के जो ना वो मंज़र पेश कर रही हैं ये इमारतें। और इसलिए सभी जितने भी इंसान हैं उनको ये सोचना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, हर चीज़ को फना होना है। और ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला का निज़ाम है उसी ने ही आखिरत जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है उसी ने इसको ख़त्म करना है। असल में चीज़ों की अहमियत नहीं होती है। सोचने की बात यह है कि ये सब कुछ फना हो जाता है। कोई किसी बड़े ओहदे पे है, जितना मर्ज़ी कोई बादशाह है, उसको ये सोचना चाहिए कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है और असल बादशाहत मेरे अल्लाह की है और उसी ने ही हमेशा के लिए रहना है। ये देखें, ये वक़्त के जो शाह थे या अपनी सखावत की वजह से मशहूर थे, उनके आबाई घरों की हालत आप खुद देख सकते हैं। अभी बिल्कुल खंडरात के मंजर पेश कर रहे हैं। हालांकि उस वक़्त में इधर क्या गहमा गहमी होती होगी। और ये पहाड़ों के खूबसूरत मंजर आप देखें और वसी और ये सिलसिला है। और जो लोग आते हैं इधर विज़िट करने के लिए, उनके लिए बैठने के लिए ये जगह ये थोड़ा आराम करने के लिए बनाई गई है। टूट फूट का शिकार है, ये आप देख सकते हैं। और ये टेबल है साथ में, और ये सब ऐसा ही अजीबोगरीब किस्म के मंजर पेश हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हातिम ताई के जो आबाई गांव था उसके जो घर थे, आपको उसके कुछ मनाजर जो ना आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखें आपके सामने, ये अभी खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। ये मिट्टी से बनी हुई सारी दीवारें हैं, ये आप अगर देखें बिल्कुल लाल मिट्टी। और ऊपर अगर आप छत देखें तो ये भी खजूर की जो शाल होती है उससे ये इसका बनाया हुआ छत। और ये पुरानी ये देखिए वो इस्तेमाल की हुई टूट फूट के मंजर हैं जनाब, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी इलाके में हातिम ताई ने अपना जो आबाई घर थे उसके इसी में अपना बचपन गुजारा है। तो ये जनाब बिल्कुल मेरे सामने वो मकबरा है जिसके अंदर हातिम ताई की जो तदफीन हुई थी, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। इधर जैतून के खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो चलो जी चलते हैं अभी अंदर। ये वो मकबरा है, ये मुख्तलिफ, अभी इनका नाम तो किसी पे मेंशन नहीं है। ये उनकी कब्रें हैं, मकबरे में जो लोग दफन किए हुए हैं। ये देखिए, और एक कब्र इस तरफ है, ये देखिए पत्थरों के साथ ये निशानियाँ रखी हुई हैं। तो नाजरीन ये देखें, इसी जगह पे हातिम ताई ने अपना बचपन, जवानी और इसी जगह पे उसकी पैदाइश हुई। और ये वो इलाका है, ये उनके घर थे। ये आप अगर देखें मैं आपको दिखाता हूँ, टूट फूट का शिकार है हर साइड से, ठीक है। और इधर एक वक्त में ऐसी सखावत के मंजर थे कि लोग दूर दराज से आते थे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी भी उनको तलब होती थी वो अशिया खुर्दो नोश लेके जाते थे। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा। तो एक्शन अली भाई इस तरफ ज़रा कैमरा मारना। ये जी हातिम ताई की
صبر ہے مقبرہ جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بھی لے کے آئے ٹھیک ہے یہ ادھر دیکھیں یہ مختلف اور بھی اس وقت کی قبریں ہیں وہ ادھر کسی کی تقسیم ہے یہ اصل چیز یہ ہے کہ حاتم طائی جو تھا وہ مسلمان تو نہیں تھا یہ عہد اسلام سے کچھ عرصہ قبل جو تھے ان کو جو نا وہ ظاہری دنیا سے وہ پردہ جو بھی ہے وہ فرما گئے تھے تو اصل میں ان کی سخاوت مشہور تھی اور ان کے جو بیٹے تھے عدی بن حاتم اور صفانہ بنت حاتم جو تھی یہ بعد میں جب اسلام کا وقت آیا تو ان کی بیٹی کو قید کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور ادھر جا کے اس کی بیٹی نے اپنے والد محترم کے جو بھی کارنامے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان فرمائے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے کیونکہ اس کا والد ایک سخی تھا لوگوں کو مثلا سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھے تو لہٰذا ان کو آزاد کیا گیا مثلا وہ غریبوں سے محبت کرتے تھے جو قیدی تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری جو صفات تھی وہ دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو لڑکی تھی صفانہ بنت حاتم اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والد کے اندر جو بھی کسی ایک مومن کے اندر صفات ہوتی ہیں وہ سب موجود تھی ماشاءاللہ اگر وہ اسلام قبول کرتے ہم اس کے لیے بخشش کی دعا فرماتے لہٰذا وہ اسلام سے پہلے ظاہر وفات پا گئے تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کے لیے دعا نہیں فرمائی لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کے اندر جو صفات موجود ہوتی ہیں وہ حاتم کے اندر موجود تھی اس لیے سب بھائی جتنے بھی مسلمان ہمارے ہیں ان کو یہ اپنا دیکھنا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ حاتم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب صفات انسان ایک مسلمان کے اندر تو ناظرین دوست ہمیں ابھی لے آئے ہیں اس جگہ پہ یہ آپ صحرا دیکھ سکتے ہیں ریت کا وسیع اور یہ صحرا ہے اور یہ گاڑیاں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سائڈ پہ یہ موٹر بائک جتنے بھی ہیں ادھر سے ہم لیتے ہیں 1 یا 2 پیس چکر انگور یہ ادھر کا باغ کا نا ادھر کا آپ کا نا سارا